अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी हदीस नंबर 4। इसकी सबसे पहले हम सनद पर बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 4 इस तरह शुरू की है। क़ाल इब्न शिहाब व अख़बरनी अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान अन्न जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी قال وهو يحدث عن فترة الوحش فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بهراء إلى آخره۔ عزیز بیٹو، پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابن شہاب سے شروع کیا ہے، حالانکہ یہ معلوم شدہ بات ہے کہ ابن شہاب رحمہ اللہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے نہیں ہے، بلکہ ابن شہاب اوپر کے راوی ہیں۔ باقی سند کہاں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اور ابن شہاب کے درمیان دو عموماً واسطے آتے ہیں، دو واسطے اکثر بیشتر آتے ہیں۔ وہ واسطے یہاں کہاں گئے؟ سوال ہے نا۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے فرمایا قال ابن شہاب و اخبرانی، اور مجھے خبر دی۔ واو عاطفہ لائے ہیں۔ پچھلی حدیث نمبر 3 میں بھی ابن شہاب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث نمبر 4 کی ابن شہاب سے پیچھے وہی سند ہے جو حدیث نمبر 3 کی ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ ہاں، ابن شہاب کے بعد سندیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 3 بخاری کی ابن شہاب عروہ بن زبیر سے وہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں، اور حدیث نمبر 4 ابن شہاب اس حدیث کو ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے بیان کرتے ہیں، اور ابو سلمہ بن عبدالرحمن اس حدیث کو جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ ایک قول کے مطابق اس کی سند ما قبل وہی ہے جو 3 نمبر حدیث کی ہے، وہی 4 نمبر حدیث کی ہے۔ ابن شہاب سے آگے صحابی بھی بدل جاتے ہیں اور ابن شہاب کے استاد بھی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واو عاطفہ لا کر اشارہ کر دیا ہے کہ پچھلی سند وہی ہے جو حدیث نمبر 3 کی ہے۔ سمجھے؟ اس بات کے دلائل میں سے یہ بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو، امام بخاری بھی حدیث نمبر 4 کو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3 کی پچھلی سند کے ساتھ لائے ہیں۔ لکھ لیں، حدیث نمبر 4925، حدیث نمبر 6214۔ صحیح بخاری کی یہ دونوں حدیثیں 4925 اور 6214 کی سند وہی سند ہے ابن شہاب تک جو حدیث نمبر 3 کی سند ہے، توجہ فرمائیں۔ 4925 نمبر حدیث کو امام بخاری بیان کرتے ہیں یحییٰ بن بکیر سے، حدیث نمبر 3 بھی ہے یحییٰ بن بکیر سے۔ یحییٰ بن بکیر کے استاد ہیں لیث، حدیث نمبر 3 میں بھی لیث ہیں۔ لیث بیان کرتے ہیں عقیل سے، حدیث نمبر 3 بھی لیث عقیل سے بیان کرتے ہیں۔ عقیل کے استاد ابن شہاب، تو عقیل کے استاد ابن شہاب حدیث نمبر 3 میں بھی ہے۔ آگے سمجھے میرے بیٹو؟ تو یہ جو ایک قول تھا، اس قول کی تصدیق امام بخاری نے خود اپنے صحیح بخاری میں 2 جگہ پر وہی حدیث نمبر 3 کی سند ابن شہاب تک نقل کر کے اس کی تائید فرما دی ہے کہ حدیث نمبر 4 کی سند وہی سند ہے
जो हदीस नंबर 3 की सनद है इब्ने शिहाब ज़ुहरी तक। एक बात। दूसरी बात यहाँ ये है, बाज ने, एक है अलामा करमानी साहिब, उन्होंने कह दिया ये मुअल्लक है, उन्होंने कहा ये मुअल्लक है, हालांकि ये मुअल्लक नहीं है। हदीस नंबर 4 को मुअल्लक कहना ये ठीक नहीं है, बल्कि इमाम बुखारी तो वाव आतफा लाकर इशारा कर रहे हैं कि इब्ने शिहाब तक वही सनद है जो हदीस नंबर 3 की सनद है, इसको मुअल्लक कहना दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह अपनी किताब फैजुल बारी में, उनको भी यहाँ गलती लगी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तहवील मुराद है, यहाँ बोलो कि हदीस नंबर 4 में जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इब्ने शिहाब से पहले सनद नहीं लाए, तो यहाँ तहवील सनद मुराद है, सनद तब्दील हो रही है। ये भी बात गलत है, सही बात नहीं है। हालांकि तहवील तो शुरू सनद में होती है, तहवील क्या होती है? शुरू सनद में, कि शुरू सनद बयान करके जहां इत्तिसाल होता है वहां छोड़ देते हैं, जहां इत्तिसाल हो रहा है मरकजी रावी वहां छोड़ देते हैं, फिर दूसरी सनद हा के साथ शुरू कर देते हैं। यहाँ तो पहली हदीस हजरत आयशा की है और दूसरी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की है। तहवील में जरूरी होता है कि वो सहाबी एक हो। सहाबी अगर पहली रिवायत जो अम्मी आयशा से है, दूसरी रिवायत भी अम्मी आयशा से होती, तो तब अनवर शाह कश्मीरी साहिब की ये बात तहवील वाला इश्काल ठीक था। जब दोनों रिवायतें अलग अलग सहाबा से हैं, तो यहाँ ये तहवील कहना दुरुस्त नहीं है। इसे तहवील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ तो ऊपर जाकर सनदें दो हो जाती हैं, सनदें दो हो जाती हैं, जबकि तहवील हमेशा शुरू से होती है। यहाँ आखिर में सनद के अंदर इख्तिलाफ हो गया है, लिहाजा ये तहवील नहीं है। ये हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब ने अनवर शाह कश्मीरी साहब का ये रद्द लिखा है अपनी किताब मिन्हतुल बारी जिल्द 1 सफा नंबर 234 में। लिखा है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तकरीर है कि गोंदलवी साहब ने इसका रद्द किया है, बाद में मुरत्तब ने इसको तरतीब दिया है। समझ लगी मेरे ख्याल में। अच्छा बेटो, जब हम इस हदीस को सही बुखारी में देखते हैं, हदीस नंबर 4 को, तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 4 जो जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत से है, हदीस वाक़या से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हदीस को 9 दफा लाए हैं। पहली 4 नंबर हदीस है और आगे 8 और जगह पर, 8 और हदीस 4 में कितना बन गया? 9, यानी एक हदीस को 9 दफा लाए हैं। अब हम आपके सामने इन 9 असानीद को जमा करके दिखाना चाहते हैं। सही बुखारी की तदरीस में सनद पर बहस बर्रे सगीर में छोड़ दी गई है, ये दुरुस्त नहीं है। फिक़्हुल हदीस, हदीस का तर्जमा समझना, माना मफहूम समझना, मसले अखद करना, ये आधा इल्म है और आधा इल्म सनद का इल्म है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम सनद पर जरूर बहस करें, ताकि सनद की बारीकियां, सनद के ज़वाबित, जर्ह व तदील का इल्म, उलूम हदीस का इल्म तलबा का उससे भी मस हो, वो भी समझें असानीद को कैसे हल करना है, जमा कैसे करना है, तुरुक कैसे इकट्ठे करने हैं, इसका बड़ा ज्यादा फायदा होता है। अल्लाह अकबर। पहले ये बात नोट करें, इस हदीस नंबर 4 को बयान करने वाले सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जाबिर बिन अब्दुल्ला के शागिर्द अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान हैं।
इस हदीस में सारी सनदें अबू सलमा पर जमा हो रही हैं। इसके चूंकि 9 सनदें हैं सही बुखारी में, आज हम सिर्फ सही बुखारी की सनदों का इहाता करेंगे, वरना हम दीगर किताबों से भी सनदें इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं जो करीब करीब किताबें हमारे पास दस्तयाब हैं। ये सनदें माशाल्लाह एक हदीस की 8 सनदें हैं, तो ये मैं तरतीब के साथ इसको बयान करना चाहता हूँ। मरकजी रावी कौन है? अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के 2 शागिर्द इस हदीस को बयान करते हैं। एक का नाम है इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी और दूसरे का नाम है यहया बिन अबी कसीर। ये दोनों शागिर्द हैं अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के। पहले हम इब्न शिहाब पर बात करते हैं। इब्न शिहाब से इस हदीस को बयान करने वाले 2 शागिर्द हैं, एक है मामर और दूसरे हैं उकैल। मामर से इस हदीस को इमाम अब्दुल रज़ाक सनानी बयान करते हैं। इमाम अब्दुल रज़ाक सनानी से इस हदीस को इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से इस हदीस को इमाम बुखारी बयान करते हैं। ये हदीस नंबर 4925 है। दूसरी बात, इब्ने शिहाब से दूसरे शागिर्द जो बयान करते हैं उनका नाम है उकैल। उकैल के शागिर्द लैस बयान करते हैं। लैस के शागिर्द अब्दुल्ला बिन यूसुफ बयान करते हैं और अब्दुल्ला बिन यूसुफ के शागिर्द इमाम बुखारी बयान करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी सनद से 2 दफा इस हदीस को लाए हैं। पहला हदीस नंबर 3238 और यही सनद है हदीस नंबर बुखारी की 4926। समझा गई मेरे ख्याल में? अच्छा जी, यहां एक और बात, इब्ने शिहाब के दूसरे शागिर्द थे उकैल। उकैल के शागिर्द लैस। लैस से बयान करने वाले 2 शागिर्द हैं। अभी हमने अब्दुल्ला बिन यूसुफ की सनद बयान की है और लैस के दूसरे शागिर्द हैं यहया बिन बुकैर। क्या नाम है? यहया बिन बुकैर। और यहया बिन बुकैर की शागिर्द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी ने यहया बिन बुकैर, वो लैस से, वो उकैल से, वो इब्ने शिहाब से, वो सलमा से, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस सनद के साथ हदीस को 2 बार जिक्र किया है। पहली बार 4925 है और दूसरी बार 6214 नंबर हदीस है। यहां तक ये सिलसिला इब्ने शिहाब की सनदों का खत्म हुआ। इमाम अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह से दूसरे शागिर्द बयान करते हैं यहया बिन अबी कसीर। ये बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। अल्लाहु अकबर। यहया बिन अबी कसीर। यहया बिन अबी कसीर से इस हदीस को 2 शागिर्दों ने बयान किया है। पहले शागिर्द हैं अली बिन अल मुबारक। अली बिन अल मुबारक। अली बिन मुबारक से बयान करते हैं वकी। वकी से यहया। यहया से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। हदीस नंबर 4922। यहया बिन अबी कसीर के दूसरे शागिर्द का नाम है हर्ब बिन शद्दाद। हर्ब बिन शद्दाद। हर्ब बिन शद्दाद से बयान करने वाले 2 शागिर्द हैं। एक का नाम है अब्दुल समद, दूसरे का नाम है अब्दुर्रहमान बिन महदी। अब्दुल समद से बयान करने वाले इसहाक बिन मंसूर हैं। इसहाक बिन मंसूर से बयान करने वाले इमाम बुखारी हैं। ये हदीस नंबर 4924 है। इसी तरह अच्छा, दूसरी सनद हर्ब बिन शद्दाद की दूसरी सनद क्या है? वो है अब्दुर्रहमान बिन महदी। अब्दुर्रहमान बिन महदी के शागिर्द मोहम्मद बिन बशार बयान करते हैं।
محمد بن بشار سے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 4923. سمجھ لگی میرے خیال میں. حرب کے 2 شاگرد ہیں، عبد الصمد اور عبد الرحمن بن مہدی. عبد الصمد کی الگ سند ہے، عبد الرحمن کی الگ سند ہے. عبد الصمد سے بیان کرتے ہیں اسحاق بن منصور. اسحاق بن منصور ہیں امام بخاری کے استاد. عبد الرحمن بن مہدی سے بیان کرتے ہیں محمد بن بشار، اور محمد بن بشار امام بخاری کے استاد ہیں. حدیث نمبر 4923. یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو جب بیان کیا حدیث نمبر 4923 میں، وہاں پر عبد الرحمن بن مہدی کے ساتھ لکھا وغیرہ. کیا مطلب کہ حرب بن شداد سے بیان کرنے والے عبد الرحمن اکیلے نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں، وغیرہ ہماری زبان میں یعنی اور بھی ہیں. ایسے امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج سند سمجھ لگتا ہے کہ وہ ہر جگہ سارے شاگردوں کے نام نہیں لیتے. ہاں اکثر مقامات پر لکھ دیتے ہیں واو یا تحویل سند کہ جی اس سند کو فلاں راوی بھی بیان کرتے ہیں، فلاں بھی کسی کے 2 شاگرد بھی بیان کرتے ہیں. لیکن 4923 نمبر میں لفظ وغیرہ بھی بیان کیا امام بخاری صاحب نے، اور امام بخاری کا لفظ وغیرہ سے اشارہ عبد الصمد کی طرف ہے. یہ بھی لکھ لیں عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ سے مراد کیا ہے؟ اس امام بخاری کی مراد عبد الصمد ہے، چونکہ صحیح بخاری میں ہی 4924 میں عبد الصمد کا ذکر بھی کر دیا ہے الگ سند کے ساتھ. اچھا جی بیٹا ٹھیک ہے رابی آپ بات سمجھے نہیں ہیں. حرب بن شداد کے 2 شاگرد ہیں، عبد الصمد اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ سے مراد عبد الصمد ہے. عبد الصمد کی سند الگ ہے. عبد الصمد سے اسحاق بن منصور سے امام بخاری 4924. عبد الرحمن بن مہدی سے محمد بن بشار سے امام بخاری رحمہ اللہ. حدیث نمبر 4923. اچھا ایک اور بات، امام بخاری رحمہ اللہ جب اس حدیث کو حدیث نمبر 4 پر لائے ہیں تو کہا ہے قال ابن شہاب. کیا کہا ہے؟ بولو قال ابن شہاب. اسی طرح حدیث نمبر 4954 میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں بھی یہی لکھا ہے قال ابن شہاب. ابن شہاب سے اپنے تک سند لکھی نہیں. 4954 ابھی ہم صحیح بخاری سے یہ نکالتے ہیں. ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محدثین سے راضی ہو جائے، انہوں نے کتنی زیادہ محنت کی کہ سندیں جمع کر دیں. سندیں جمع کرنے سے حدیث کو اور تقویت ملتی ہے کہ جی اس کی اتنی سندیں ہیں ماشاءاللہ، اور ذہن وسیع ہوتا ہے. 4054. اچھا بیٹو 4954 میں لکھا ہوا ہے قال محمد بن شہاب. کیا لکھا ہے؟ قال محمد بن شہاب فاخبرني ابو سلمہ. حدیث نمبر 4 میں ہے واو، حدیث نمبر 4 میں ہے واو، یہاں ہے فاخبرني ابو سلمہ. اس سے پہلے
4953 नंबर हदीस में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वही हदीस लाए हैं जो हदीस नंबर 3 है। तो फरमाएं, बदिल वही में इमाम बुखारी ने 3 नंबर जो हदीस लाए हैं, फिर 4 नंबर हदीस लाए हैं। तो वही दोनों रवायतें इकट्ठी सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 453 और हदीस नंबर 4954 इन दोनों को इकट्ठा लाए हैं। वहां भी इकट्ठा लाए, यहां भी इकट्ठा लाए। फर्क क्या है? वहां हदीस नंबर 4 में वाव लिखा है, काला इब्न शिहाब वाव। यहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा काला मोहम्मद इब्न शिहाब फा अखबरानी। तो ये भी एक दलील है कि हदीस नंबर 3 की सनद इब्न शिहाब तक वही है जो हदीस नंबर 4 की सनद वही है इब्न शिहाब तक जो हदीस नंबर 3 की है। उसके दलाल पहले भी हम जिक्र कर दिए। और ये भी एक दलील है कि हदीस नंबर 4954 की सनद वही है इब्न शिहाब तक जो हदीस नंबर 4953 की है। फर्क क्या है? वहां वाव लाया है, यहाँ फाव लाया है। वाव भी हरफे अतफ है, फाव भी हरफे रुफे आतफ है। रुफे अतफा कितने हैं? आतफा 10 हैं। वाव फा सुम्मा हत्ता इज्मा ओ अमला बल लेकिन 10 हैं। समझ लगी मेरे ख्याल में? ये बारीकियां सनद की इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको हमने हल करना है ताकि कल को मुस्तकबिल में आपने बहुत बड़े मुहद्दिस बनना है, इमाम बनना है, मुहद्दिस बनना है, किताबें लिखनी है, इल्म रिजाल को आम करना है पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। तो कब करेंगे? जब आपको इल्म रिजाल की बारीकियों का पता होगा। बारकल्लाह। इसी के साथ हमारी हदीस नंबर 4 की सनद की बात पूरी हुई। ये जो कि माशाल्लाह 9 सनदें थी, तो इस पर काहे वक्त लग गया, इसको हमने इसी पर इक्तिफा किया है और किताबों में हमने इसको तलाश किया नहीं। आती है ये वाली है, हाँ बताया है ना। इसकी 9 सनदें अपनी ही, इसलिए हमने और आगे बयान नहीं किया, वक्त बहुत लग जाएगा। बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम।